Hello everyone. Today we'll discuss the phases of digestion by Professor Sabashik. So phases of digestion. The digestion consists of three phases. First one is a cephalic phase. Second one is the gastric phase, and the third one is the intestinal phase. So let's see each phase one by one in detail. So first one is the cephalic phase. So the purpose of cephalic phase is to prepare the mouth and the stomach for the food which is about to be eaten. So what happens here? The neural center, which is nothing but the cortex, brainstem and hypothalamus, these three neural center, it is activated by smell, sight or initial taste or the thought of the food. Then after activation of neural center, this will activate facial nerve, glossopharyngeal nerve and the vagus nerve. This vagus nerve stimulate the gastric gland. तो ये जो vagus nerve है ये क्या करेगी? gastric gland को stimulate करेगी and to secrete the gastric juice. Whereas this facial and glossopharyngeal nerve, it will stimulate the salivary gland to secrete saliva. So basically cephalic phase जो है ये ऐसा phase है जिसके अंदर अपना माउथ और स्टमक है वो प्रिपेयर होता है फॉर द फूड विच इज अबाउट टू बी ईटन. Then the next phase is the gastric phase. So once the food reaches the stomach, the gastric phase of digestion begin. Neural and hormonal mechanism regulate the gastric phase of digestion to promote the gastric secretion and gastric motility. तो ब्रॉडली देखा जाए तो न्यूरल फेज और न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म, ये दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं गैस्ट्रिक फेज के अंदर जो रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन टू प्रमोट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी. सो फर्स्ट विल सी द न्यूरल मैकेनिज्म. So in neural mechanism, the food entering the stomach, when the food enter the stomach, the distension or the stretching of the wall of the stomach occur. Due to this distension, जो स्टमक की वॉल है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेच हो जाएगी जब फूड अंदर आएगा. इसकी वजह से कीमो रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर जो स्टमक में प्रेजेंट है ये डिटेक्ट करेंगे पीएच इंक्रीज को और डिस्टेंशन को. देन once the stomach detect the pH increase and the distension via a chemoreceptor and stress receptor, it gives the input to the control center. और ये कंट्रोल सेंटर इसके बाद आउटपुट जनरेट करेगा और वो आउटपुट क्या होगा कि पैराइटल सेल सिक्रीट करेगा HCl एंड स्मूथ मसल इन स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट मोर विगरसली. तो स्टमक की जो स्मूथ मसल की वॉल है वो विगरसली और फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी. एंड ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ smooth muscle in stomach, it will increase the acidity of stomach, chyme, mixing of stomach content and emptying of stomach occur. So this is the neural mechanism. So neural mechanism अगर देखा जाए तो ये एक्टिवेट होता है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक वॉल. और ये स्टमक वॉल की स्ट्रेचिंग की होती है व्हेन द फूड एंटर इनटू द स्टमक. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पैराइटल सेल सिक्रीट करेगा HCl को और स्मूथ मसल ऑफ स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मोर विगरसली. नाउ नेक्स्ट इज द हार्मोनल मैकेनिज्म. So in this, the G cell of gastric gland secrete gastrin. So gastrin is a hormone which is secreted by the G cell of gastric gland. तो ये जो gastrin है उसके क्या functions होते हैं? So this gastrin help to secrete gastric juice. This gastrin strengthen the contraction of lower esophageal sphincter, increase the motility of stomach. तो ये जो gastrin है स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है एंड प्रमोट द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. नाउ नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइनल फेज. जो लास्ट फेज है वो है इंटेस्टाइनल फेज. अब ये जो इंटेस्टाइनल फेज ऑफ डाइजेशन बिगिंस वंस द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑब्वियसली जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो ये इंटेस्टाइनल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा.
In contrast to the reflexes initiated during the cephalic and gastric phase, which stimulate the stomach excretory activity and motility. अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि गैस्ट्रिक फेज के अंदर जो स्टमक की मोटिलिटी है वो इंक्रीज होती है बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. ओके, बट दोज अकरिंग इन इंटेस्टाइनल फेज, बट ये इंटेस्टाइनल फेज के अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है. व्हाई? टू स्लो द एग्जिट ऑफ कायम फ्रॉम द स्टमक. ये इनहिबिटरी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो कायम का एक्सक्रीशन है फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन वो स्लोली हो. And this is why, because this prevent the duodenum from being overloaded with more chyme that it can handle. तो आइडियली स्टमक से जो कंटेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे आना चाहिए, अदरवाइज जो डिओडेनम है वो ओवरलोड हो जाएगा. इन एडिशन, responses occurring during intestinal phase promote the continued digestion of food that have reached the small intestine. तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस इनहिबिटरी इफेक्ट, एक इफेक्ट ये भी है कि इंटेस्टाइनल फेज जो है उसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके, बिकॉज अगर डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो कंप्लीट होगा तभी उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट होगा. These activity of intestinal phase of digestion are regulated by neural and hormonal mechanism. सेम जैसे गैस्ट्रिक फेज में था, यहाँ पे भी दो मैकेनिज्म है, न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म. सो फर्स्ट विल सी द न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल फेज. सो डिस्टेंशन ऑफ द डिओडेनम बाय द प्रेजेंस ऑफ काइम. अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो डिओडेनम है उसका डिस्टेंशन हो रहा है. व्हाई? बिकॉज जो काइम है वो स्टमक से इधर आ रहा है. It will the stretch receptor in duodenum wall send the nerve impulse to medulla oblongata. Then what happens, where they inhibit the parasympathetic stimulation and stimulate the sympathetic nerves to the stomach. तो जब ये नर्व इम्पल्स भेजेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा. वो आउटपुट क्या होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व टू द स्टमक को, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, एज अ रिजल्ट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज इनहिबिटेड. तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो इनहिबिट होगी. ओके, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर विच इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. तो बेसिकली जो इंटेस्टाइनल फेज है वहां पे कंटेंट स्लो स्लो आना चाहिए स्टमक से. इस वजह से क्या होगा कि जब डिओडेनम के पास कायम आएगा और डिओडेनम जब एक्सटेंड हो जाएगा और बोलते हैं ना कि एक तरीके से वो फैल जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर जो डिओडेनम के वॉल पे प्रेजेंट है वो नर्व इंपल्स भेजेगा ब्रेन में. ब्रेन उस नर्व इंपल्स को क्या करेगा, इनपुट को प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा. और आउटपुट ये होगा कि ये स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व ऑफ टू द स्टमक को. जब सिंपैथेटिक नर्व्स टू द स्टमक जो एक्टिवेट होती है और स्टिमुलेट होती है, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, मतलब जो स्टमक से जो इंटेस्टाइन के पास कंटेंट आना है वो धीरे धीरे आएगा. ओके, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग इज डिक्रीज. तो ये बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व क्या होगा कि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग स्लो डाउन हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज द हार्मोनल मैकेनिज्म. So small intestine secretes two hormone. One is the CCK, which is nothing but the cholecystokinin. It is secreted by the CCK cell of the intestinal gland. और small intestine also secrete करता है secretin को. It is also a hormone. अब ये cholecystokinin का function क्या है? तो ये cholecystokinin क्या करता है कि stimulate करता है secretion of pancreatic juice. इट ऑल्सो स्लो डाउन द गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन करता है. बिकॉज हम लोगों को इंटेस्टाइनल फेज में गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग फास्ट नहीं चाहिए. वाई? बिकॉज अगर गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग फास्ट रहेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होना है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा. इट ऑल्सो कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर विच स्क्वीज द स्टोर्ड बाइल आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर इनटू द सिस्टिक डक्ट एंड थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट. सो बेसिकली अगर ब्रॉड वे में बोला जाए तो जो CCK है ये प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ बाइल. CCK अलाउ द पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल टू फ्लो इनटू द डिओडेनम. तो जो डिओडेनम में
पैनक्रियाटिक जूस और बाइल का जो फ्लो है वो प्रमोट करता है CCK. The CCK produces a feeling of fullness by acting on the hypothalamus in the brain. हमने खाना खा लिया है, ये जो सेंस ऑफ फीलिंग आती है, सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, तो ये जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है ये प्रोड्यूस करता है CCK बाय एक्टिंग थ्रू दी हाइपोथैलेमस. नाउ सिक्रीटिन. अब सिक्रीटिन का क्या फंक्शन है? तो सिक्रीटिन का पहला फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल, inhibit the secretion of gastric juice, promote the normal growth and maintenance of pancreas and enhance the effect of CCK. तो ये जो CCK के different effect है इसको enhance करता है ये secretin. So all these are the function of secretin. So this is all about the phases of digestion. Thank you.